कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सहरिश असगर का कहना है कि वादी में आज हालात काबू में रहे। एहतिजाज और पथराव के इक्का दुक्का वाकयात ही पेश आए। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा कि स्कूलों को खोलना अहम था और इसमें कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अगरचे तलबा की हाजिरी कम रही ताहम आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अच्छी तादाद में असातिज़ा की हाजिरी हौसला अफजा है। उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए परसों से मिडिल स्कूल खोलने का भी मंसूबा है। Relaxation have been ordered in the respective districts by the district magistrates within their territorial jurisdiction in almost half of the police stations of the valley. There has been no major law and order situation reported from across the valley. Life is slowly returning to normal. Public in general has been cooperative. In the Jammu region, no incident of law and order has been reported. Some rumours were spread yesterday by certain elements. The government urges people not to believe in any kind of rumour mongering by the vested interests. All the areas where there has been relaxations were extended, have behaved peacefully. There was some minor incidents of stone pelting in certain pockets, but those were dealt as per law, and the miscreants were dispersed. We have a network of 500 schools in Srinagar district, and it was notified that 196 schools will be up to primary level will be open today, and 72 schools where we had in 72 schools we had thin attendance of students. Staff percentage was 30 to 50% in these schools. As far as Badgaon district is concerned, 68 schools were declared to be open up to primary level. Staff was present in 35 schools, and students ranging from 4 to 12 in number were present in these schools. As far as Ganderbal is concerned, out of 216 primary schools were declared to be open today, and the attendance of the staff was ranging from 30 to 40%, and student attendance was 18%. In Pulwama, some zones were notified to be opened, and in schools in Bathin, Kriv and Shadimarg, the local staff was available in the schools, and attendance of students was thin. In Shupian, 10 to 12 schools were open, and the attendance of students was nil. In Kulgam, in Tangmarg, Wattu area, 70% staff had turned up, and thin attendance of students was found in 10 to 20 schools. In DH4 staff, 80% presence of the staff in these primary schools, and attendance of children was nil. In Watlangu, Nad, Akhal area staff position was 70% was present, and thin attendance of students was found. In Malam area staff was present, thin attendance of students in all these schools. In Anantnag, it was declared, we have a network of 1100 schools in Anantnag. It was declared for today that 89 schools will be opened up to the primary schools, and it was students, teachers were present by a total number of 126 teachers, and students present by 39. In Baramulla, total primary school number of schools is 671, which were and it was notified to be opened. 322 schools were to be notified for today, and staff presence was almost 40%, and student attendance was up to 20%. In Bandipora, around 35% schools out of 207 up to primary level were open today, and percentage of students was 10 to 12%. In Kupwara, in border areas, some zones were notified. In 137 schools were open today, and the staff percentage was 30 to 40%, and mainly the local staff available in the schools, and students present were around about 1,000. मजीद जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तसद्दुक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तसद्दुक, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज स्कूल खुल गए कई मकामात पर, तो हाजिरी जैसा कि कहा गया कि ना के बराबर रही कुछ स्कूलों में जो है तादाद बच्चों की बहुत कम रही। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या कुछ देखा और क्या लग रहा है, उम्मीद है कुछ दिनों में जो अटेंडेंस है स्कूलों में वो बढ़ जाएगी? देखिए उल्फत, अगर हम बात करें जो आज शहर श्रीनगर की हम बात करें तो यहाँ पे जो हाजिरी ना के बराबर रही, और अगर वहीं जैसे अभी आप डायरेक्टर एजुकेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सबसे ज़्यादा जो उनको रिस्पांस मिला वो कुपवारा के सरहदी ज़िला के दूर दराज इलाकों से मिला है, जहाँ पे 1000 के करीब जो तलबा और तलबात स्कूल पहुँचे। और वहीं अगर हम बात करें जो इन स्कूलों में
जो असातिज़ा है उनकी तादाद 10 से लेके 80% तक रही। और हालांकि वहीं जो सरकारी दफातर में भी जो हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए आज काफ़ी मतलब पेशरफ्त रही। और सिविल सेक्रेटरीट की अगर बात करें, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई, जहां पिछले हफ्ते में दो तिहाई अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही थी सिविल सेक्रेटरीट में, आज ये 98% तक जा पहुंची। और वही PHE और बाकी जो अवामी महकमे ज़ात है वहाँ पे भी नुमाया बेहतरी आई है। जो यहाँ पे जो स्टाफ है वो ऑफिसर्स का रुख कर गए हैं। लेकिन वहीं अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में हमने स्टूडेंट्स को नहीं पाया, जिसकी जाहिर सी वजह यह है कि यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं इन हालात में लोग खासकर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने में ही अपनी बेहतरी समझ रहे हैं, क्योंकि हालात इस कदर मुवाफिक नहीं है यहाँ पे। और यही जहाँ पे ये असल में इन्होंने कहा था कि जो सरकारी स्कूलों में आज यहाँ पे खोलने की बात ही थी, तो शहर श्रीनगर में इतना जो इन स्कूलों में बच्चे जाते भी नहीं हो, प्राइवेट स्कूल का ही यहाँ पे जो खासकर बच्चे हैं वो जाते हैं। अगर दूर दराज के जो इलाके हैं या जैसे डायरेक्टर स्कूल सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के सरहदी इलाके अखनूर से एक अफवाहबाज को गिरफ्तार किया गया है। SSP जम्मू तेजिंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि अफवाहबाज यशवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यशवीर का ताल्लुक खूर गांव से है और इसका नाम पहले से ही मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल है। जिस बंदे से ये इनिशियली स्टार्ट हुआ है उसको ज़ीरो इन किया, उस बंदे का नाम यशवीर सिंह है और उसका कोड बादशाह अलायस डॉन है, जो कि सन ऑफ बलवंत सिंह है, RO धानपुर। ये तहसील खोड़ का रहने वाला है। एज इसकी लगभग 40 साल है। बेसिकली नशे वशे का भी थोड़ा आदी है। तो उस बंदे ने सबसे पहले ये डिस्क्लोज़ किया था कि जंग लगने की शायद हालात हैं या हो सकता है जंग लग जाए तो पेट्रोल पंप कल से बंद हो जाएंगे। ही सेड इट टू समवन और वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। अभी उसके जिन जिन लोगों को उसने बताया था उन लोगों के भी हमने स्टेटमेंट्स ले लिए, बयान ले लिए हैं, तो वो बंदा अभी हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान ने जहां हिंदुस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को महदूद कर दिया है और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए, अब पुंछ रावलाकोट बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया है। DC पुंछ राहुल यादव के मुताबिक मामूल के मुताबिक पुंछ रावलाकोट बस को POK के लिए रवाना किया गया था, ताहम चकांदाबाग के राह मिलन पहुंचने पर POK इंतजामिया की जानिब से कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, जिसके बाद बस वापस पुंछ लौट गई। इस बस में POK के 27 बाशिंदे सवार थे। किया कम 100 आदमी जब हम आए तब भी, अब भी हम जब जुदा हुए तब भी बहुत शान शुक्र से उन्होंने विदा किया और उनके आंखों में भी आंसू आए, हमारे भी। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक ऐसा ही मोहर रखे और अमन रखे, हम आते जाते रहे वो भी आए और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है। अभी भी काफी आदमी हमारे साथ आए, अलविदा किया है। हम कहते हैं या अल्लाह इस मुल्क में आपस में तल्लक अच्छे हो और अच्छे ही तल्लक गुजर रहे हैं। हालात जो बने हुए हैं ये तो ठीक नहीं है ना, ये जो आजकल बने हुए हैं ये हालात ठीक नहीं है। अमन होना चाहिए ना कि एक दूसरा एक आने चाहिए, बहनों भाइयों से मिलना चाहिए। हम तो जैद मार रहे हैं तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन रास्ते बंद से कहीं जा नहीं सके। हम तो ये कहते हैं कि अमन होना चाहिए। देखिएगा हमारा हर मंडे को जो एक क्रॉसिंग होता है जिसमें हमारे पुंछ और रावलाकोट के बीच में जो POK रेजिडेंट जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी तरफ से जो लोग हैं वो भी POK में जाते हैं। और इस बार आज मंडे के दिन हमारे इस समय जो टोटल हमारे पुंछ में 42 POK रेजिडेंट जो है वो इस समय यहाँ पर आए हुए हैं और आज 27 लोगों ने जिनका ड्यू हो चुका था डेट, इनको आज वापस जाना था। आज हमारी तरफ से ये स्टार्ट किया गया और मैसेज भी कन्वे किया गया, लेकिन POK अथॉरिटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमारी जो बस सर्विस है वो आज नहीं चल पाई।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, दाखिला सेक्रेटरी राजीव गवाबा और सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान मौजूद थे। अजीत डोभाल के 10 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरे के बाद ये मीटिंग हुई। आईएन की दफ़ा 370 की मनसूखी और लद्दाख व जम्मू कश्मीर को अलहदा यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले के बाद अजीत डोभाल ने रियासत का 10 दिनों का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान कौमी सलामती मुशीर ने जहां सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने शूपियां, अनंतनाग और डाउनटाउन श्रीनगर में मकामी लोगों से तबादुल ख्याल भी किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए हसनैन मसूदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले में कानूनी जद्दोजहद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरों की रिहाई के बाद दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। सबसे पहली बात है कि हमने फ़ौरन ही एक पिटीशन दायर की, कानूनी जंग का हमने आगाज़ किया। तो वो तो पहला हमारा था उसके बारे में जो रद्द-ए-अमल। तो दूसरी बात ये, क़यादत अभी सारी जो है वो नज़रबंद है। जब तक हमारी जो क़यादत है वो रहा नहीं होती, तब तक हम अपने लिए जो भी बाइल है, हमारा जो भी करना है उनको करना होगा, या जो भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना होगा वो रद्द-ए-अमल फिर ज़ाहिर होगा। तो तब तक हमें इंतज़ार है, तब तक हम यही करेंगे जो हमने हमारा जो कानूनी हमने जो रास्ता किया उस पर जो 370 कलम किया गया, देखिए उसके लिए कोई आईनी रास्ता नहीं उन्होंने वो नहीं अपनाया। तो हर एक चीज़ आईन के ख़िलाफ़ हुई। इतना ही, वो सबसे बड़ा ये है कि ये एक वादा किया गया था हमसे, ये हमने ऐसे ही जोर दरवाजे से नहीं लाया था। देखिए हमारी जो ऑटोनॉमी है, हमारी जो आइडेंटिटी है, ये सारी हमारी, ये सारा एक हमें एक दिया गया था यूनियनिमसली, एक दिया गया था हमें आपस में रजामंदी के बाद। दहली एग्रीमेंट हुआ 1952 में, वो भी पार्लियामेंट ने वो मंजूर किया, उसको अडॉप्ट किया, रेटिफाई किया। तो ये सारा जो इन्होंने एक तरफा तौर पर ये सारे जो हमारे साथ वादे किए गए थे, सबसे बड़ा मामला ये है कि वो सारे एक तरफा तौर वो सारे वादे उन्होंने ख़त्म किए। इस बीच आज रियासती कांग्रेस की तरफ से आईजीपी जम्मू को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया है कि पार्टी के जिन लीडरान को घरों में नजरबंद किया गया है उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये मेमोरेंडम पार्टी की रियासती ओबीसी सेल के चेयरमैन सुरेश डोगरा ने आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह के हवाले किया। मेमोरेंडम में लीडरान के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर वापस लेने का भी मुतालबा किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ये क्लेम कर रही है कि आर्टिकल 370 और 35A के उतरने से जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, तो फिर ये रेस्ट्रिक्शंस जो लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब मीर साहब, जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, उनको नज़रबंद करके रखा हुआ है, हमारे भल्ला साहब को नज़रबंद करके रखा हुआ है, उसको हाउस अरेस्ट का नाम दिया है। तो ऐसा क्यों, जब नॉर्मलसी है? और हम लोगों ने कभी भी एंटी गवर्नमेंट, एंटी 370, एंटी 335A का विरोध नहीं किया। कश्मीर न्यूज़ में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।